Hello everybody, I am Sharon. I welcome you all on the official channel of Erudition Studies. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਰਾਈਟ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਸੁਨੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ 10 ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ और मॉडर्न हिस्ट्री ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿਸਟਰੀ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਆਲਰਾਈਟ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 10 ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 11ਵਾਂ ਲੈਕਚਰ ਜੋ ਹੈ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਵਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਵਧ ਹੈ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਐਮਪਰਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਕਬਰ ਰਾਈਟ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1572 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ 80 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਨੇ 12 ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ ਔਧ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਔਧ ਜੋ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਗਲ ਐਮਪਰਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਓਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਹੀ ਅਵਧ ਦੀ ਅਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਰਾਈਟ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਔਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਔਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਧ ਕਹਿਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਅਵਧ ਹੀ ਪੱਕ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਵਧ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਵਾਬਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਧ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਨੈਕਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਵਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਵਧ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਦਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਅਵਧ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵਧ ਦੀ ਮੇਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਧ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਰਹੀ ਅਯੋਧਿਆ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਹੋਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਕੀ ਅਵਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨਲ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਧ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਕਸਰ ਦੀ ਬੈਟਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਸੀ ਬਕਸਰ ਵਾਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਈਟ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਰਾਈਟ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ 1765 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ 1765 ਚ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਵਧ ਦੇ ਉੱਪਰ 100% ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਾਈਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਆ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਨਾ ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਹੈਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਰਾਈਟ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਵਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਈਟ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਐਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਓਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਸੀ ਬਕਸਰ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿਰਾਜੁद्दौला then ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ and ਮੁਗਲ ਐਮਪਰਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ II ਰਾਈਟ
ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਗੀਆਂ और दूसरे पासे सी साडी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। बट फिर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हां तिन्नां नूं मिल के हरा दिता सी, है ना। और इस तो बाद फिर इलाहाबाद दी ट्रीटी हुई सी, राइट। और जदों इलाहाबाद दी ट्रीटी हुई उस तो बाद ही फिर अवध जो है ना ये ब्रिटिश तुसीं कह सकदे हो कि इन्हां दे अंडर पार्शियल टाइप दे विच आ गया सी, ठीक है। हुण असीं इत्थे देखना है कि जदों ब्रिटिश ने अवध दे उपर कब्जा कीता, ठीक है, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਅਵਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵਾਜਿਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਧ ਦਾ ਲਾਸਟ ਨਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਧ ਦਾ ਲਾਸਟ ਨਵਾਬ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਾਜਿਦ ਸ਼ਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਜਿਦ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ इनकॉम्पिटेंसी है, यानी कि इनका अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के उपर कोई कंट्रोल नहीं हैगा, इनू मैनेजमेंट नहीं करनी आती, इनू राजपाट जिहड़ा हैगा आ संभालना ही नहीं आता, ठीक है। यानी कि कैपेबल ही है नहींगा, जदों कि कैपेबल सी। बट जदों ये रिपोर्ट पेश की गई ब्रिटिश एम्पायर के सामने कि जिहड़ा वाजिद अली शाह हैगा आ, है ना, ये इनकॉम्पिटेंस हैगा आ, राइट, इन्हां दे विच कोई इहदे विच ओह गुण ही नहीं हैगी जिस दे नाल अवध नूं अपने अंडर रख सके। तां बस ब्रिटिश नूं होर की चाहीदा सी, इन्हां नूं लग्या वाह जी हुण तां ना तां सानूं कोई लड़ाई लड़नी पई, है ना, ना ही सानूं कोई ट्रीटी देखनी पई, असी डायरैक्ट की कर दिता, असी इहदे उपर हुण कब्जा कर लेना है क्योंकि इन्हां नूं बहाना मिल गया सीगा, है ना, कि हुण असी इहदे उपर माल एडमिनिस्ट्रेशन दा जो है इल्जाम लगावांगे और अवध दे उपर अपना कब्जा कर लांगे, राइट। तो मैम ये दसो कि ऑर्डर किसने दिते सीगे, तो जिहड़ा वाजिद शाह है ना इनू अपने अंडर करन लई, इनू डिपोज करन दे लई ऑर्डर दिते गए सीगे लॉर्ड डलहौजी दे वल्लों, ठीक है जी। तो किहड़ी डेट नू 7 फरवरी 1856 नू ही लॉर्ड डलहौजी ने ऑर्डर दे दिता कि वाजिद शाह नू मिस रूल दे दोष दे विच ना गद्दी तो हटा दिता जाए, ठीक है। हुण तुहाडे दिमाग दे विच एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि मैम मिस रूल किता कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले दा आपदा राज है, अगला उत्थे दा नवाब है, वो मिस रूल करे या एडमिनिस्ट्रेशन नू अच्छे तरीके नाल चलाए, इहदा अधिकार अंग्रेज़ां नू किसने दिता कि जे कोई मिस रूल करेगा तां तुसीं उहनूं बाहर कढ सकदे हो और अपना कब्जा जमा सकदे हो। तां देखो असी ऐसे ही लॉर्ड डलहौजी दी एक नीति देखी सी, किहड़े वाली, इहदी असी देखी सी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राइट। और जिहड़ी ये लैप्स दी नीति हैगी है इस दे विच ही इन्हां ने ना ब्रिटिश ने एक क्लॉज पाया होया सी, ठीक है, कि इहदे विच की लिखिया गया सीगा कि जे कोई भी किंगडम इंडिया दा मिस रूल करदा है तां फिर ब्रिटिश जिहड़े हैगे ने उस राजे नूं उस नवाब नूं दी गद्दी तो उतार सकदे हैं और उस किंगडम नूं हथिया सकदे ने, ठीक है। तां जदों इन्हां ने वाजिद अली शाह नूं हटा के अवध दे उपर कब्जा करना सी उदों भी इन्हां ने लॉर्ड डलहौजी दी जिहड़ी लैप्स दी नीति है ना ऐसे का ही सहारा लिया, ठीक है। और ऐसे नूं ही बेस बना के इन्हां ने अवध नूं अपने अंडर कीता सी। तां फिर अवध नूं फिर इन्हां ने फरवरी 1856 दे विच की कर लिया, अपने कब्जे दे अंदर ले लिया, ठीक है। ते तुसी देखो यही सारे कारण बननगे जदों अगे जाके ना 1857 दे विच असी देखांगे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट, यानी कि साडी आज़ादी दी पहली लड़ाई, है ना। उस दे विच फिर जिहड़े अवध दे सोल्जर्स हैगे हैं इन्हां ने बहुत ही ज़्यादा लीडिंग रोल प्ले कीता सी, काफ़ी ज़्यादा वड्डी गिनती दे विच अवध दे जिहड़े सोल्जर्स है उन्हां ने 1857 दे विद्रोह दे विच अंग्रेज़ां दे खिलाफ लड़ाई लड़ी सी, ठीक है ना। ओके, ते बाद दे विच फिर जो अवध है इन्हां नूं अंग्रेज़ां ने की कीता, इन्हां नूं अंग्रेज़ां ने नॉर्थ वैस्ट प्रोविंस दे विच मिला लिया सीगा, ओके। और इन्नी ज़्यादा फिर जिहड़ी अपनी इंसल्ट है हुणे अवध कोलों बर्दाश्त नहीं होएगी, ठीक है जी। ओके, अगे असीं देखांगे अवध दे विच इंपोर्टेंट नवाब किहड़े होए, बिकॉज आपां सारे याद नहीं रखने, ठीक है। तां सब तो पहला सादत अली खान दा नाम आंदा है, असीं हुणे ही कीता सी। सादत अली खान को है, ये ओही पर्सन है जिसने अवध नूं फाउंड किया, राइट। इस तो बाद सफदर जंग, देन सुजाउद्दौला, आसफउद्दौला, सादत अली खान 2, ओके। ये 1 है और ये 2 है, ऐदा याद रख लेना। गाजिद-उद-दीन, देन वाजिद अली शाह, ओके। ये आपां हुणे कीता कि वाजिद अली शाह कौन है, ये वही पर्सन है जो कि अवध दा लास्ट नवाब रहेगा, राइट।
ओके, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਦਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਹੀ ਵਾਸ ਦ ਫਾਊਂਡਰ। ਓਕੇ, ਆਫਟਰ दैट ਸਾਦਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਬੁਰਹਾਨ ਉਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਪਾਧੀ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਨੇ 1720 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया सीगा सूबेदार, ठीक है, सूबेदार नियुक्त किया सीगा। ते फिर अवध का सूबेदार कदों बनया? 1722 दे विच अवध का सूबेदार बन गया सीगा। और यही वो परसन है जिसने की किया, जिसने अवध की जिहड़ी कैपिटल है उसनू बना दिता सीगा फैजाबाद, ठीक है। ऑलराइट, इस तो बाद नैक्सट गल करांगे नवाब सुजाऊ दौला दी, ठीक है। और ये ओही वाला परसन है जिसने बैटल ऑफ बक्सर दे विच पार्टिसिपेट किया सीगा। और एदे टाइम दे विच एक होर इंपॉर्टेंट बैटल है जिहड़ी कि लड़ी गई, किहड़ी है जी? ये हो जाएगी पानीपत दी थर्ड बैटल, राइट। ओके, और जिहड़ी पानीपत दी थर्ड बैटल है, जस्ट तुहानूं पता होना चाहिए है कि किहदे किहदे विचकार लड़ी गई है। ये अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास दे विचकार होई सीगी, राइट। ओके, ते इस वेले जिहड़ा फिर ये दौला आ, इहने किहदा साथ दिता सीगा? इसने साथ दिता सीगा अहमद शाह अब्दाली दा। ऑलराइट, ओके, ते हुण जदों असीं गल कीती सी ना किहड़ी वाली? बैटल ऑफ बक्सर दी। बैटल ऑफ बक्सर तो बाद इलाहाबाद दी ट्रीटी होई सी, है ना। इस इलाहाबाद दी ट्रीटी दा एक रिजल्ट आया सी, किहड़े वाला? इहदे ना अवध दे दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन सीगे। एक तां इलाहाबाद है, ठीक है, दूसरा रीजन हैगा कड़ा दा। ओके, ते इलाहाबाद और कड़ा दा जो एरिया है ये अवध तो खो लिया गया। इन्ना ही नहीं, इस दे नाल नाल अवध दा जिहड़ा चुनार फोर्ट है इसके उपर भी अंग्रेज़ां ने अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। और हुण अंग्रेज़ां ने ट्रेड दे विच, व्यापार दे विच भी कुछ ना कुछ फायदा लेना सी, तां इन्हां ने की अधिकार ले लिया? इन्हां ने बोलिया कि अवध दे उपर हुण ये बिल्कुल टैक्स फ्री ट्रेड करनगे, यानी कि हुण कोई भी इन्हां नूं टैक्स नहीं देना पैना, फ्री दे विच ये ट्रेड कर सकणगे, ठीक है जी। इन्ने सारे फायदे इन्हां नूं इलाहाबाद दी ट्रीटी तो बाद ऑलरेडी हो चुके सीगे, है ना। ते हुण अवध नूं पता चल गया सीगा कि जिहड़ा ये साडा इलाहाबाद और कड़ा दा एरिया हैगा वो किसी ना किसी तरीके नाल सानूं वापस लेना पैना है, ठीक है। तो फिर उस टाइम दे उपर एक ट्रीटी हुंदी है, ट्रीटी ऑफ बनारस। कदों हुई जी? 1773 दे विच हुई है, राइट। और 1773 दे विच सुजाऊ दौला ने बनारस की ट्रीटी की एंड उस टाइम फिर सुजाऊ दौला ने ना 50 लाख रुपीज़ का एक फाइन भरिया। और एदे एवज दे विच ही अंग्रेज़ां ने इलाहाबाद एंड कड़ा दा एरिया इसनूं वापस कर दिता, ठीक है जी। ऑलराइट, तो इस तो बाद फिर हुण असीं गल करांगे किस दी? अगले परसन दी, आसफ उद दौला। इसका टाइम पीरियड रहेगा 1775 तो लेके 1797 तक, राइट। एने ना कंस्ट्रक्ट किया इमाम बाड़ा, ठीक है। ये वही वाली जगह होएगी जिथे मुस्लिम लोग जाके की करते हुंदे सीगे? ये मुस्लिम लोग उत्थे जाके पूजा अर्चना करते, यानी कि अपनी इबादत करते सी, ठीक है। 1784 दे विच इसने इमाम बाड़ा की स्थापना की सीगी, किहड़ी जगह ते? लखनऊ दे विच, है ना। और असी कुछ देर ही पहला किया कि लखनऊ वो वाला रीजन है जिसनों अंग्रेज़ां ने अपने रेजिडेंस नूं बिठाने दे वास्ते अपना बेस बनाया सी, राइट। और लखनऊ दे विच इसने बनाया एक इमाम बाड़ा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छी तरह याद रखना, ठीक है। और इसे करके ना आसफ उद दौला नूं को की बोलिया जाता है? इनू बोलिया जाता है लखनऊ दा आर्कीटैक्ट जनरल, राइट। ओके, इस तो बाद नैक्सट परसन आ जाएगा सादित अली खान 2। जदों असीं सादित अली खान 1 की गल कीती सी तां असीं की कीता सीगा? बिल्कुल सही कि वो सीगा फाउंडर, राइट। हुण इत्थे 2 की गल हो रही है, ये हैगा सुजाऊ दौला दा बेटा, ओके। इहदे बारे विच सब तो इंपॉर्टेंट की है? 1801 दे विच इसने सबसिडरी अलायंस नूं साइन कीता सीगा, ओके। जदों भी असीं सबसिडरी अलायंस बारे पढ़ांगे ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾ सीक्वेंस बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता हुंदा है, ठीक है। ये असीं देखांगे भी कि पहला किसने साइन की है, फिर किसने साइन की, फिर किसने की, ठीक है। ये पूछा जाता हुंदा है। तो तुसीं इत्थे फिर याद रखोगे अगर तुहाडे कोले क्वेश्चन आंदा आ कि अवध दा वो केड़ा नवाब है जिसने कि
इस ट्रीटी नू सबसिडरी अलायंस नू साइन किया? तो याद रखना है सादित अली खान टू ने इसनू साइन किया सीगा, राइट। और जिहड़ा सबसिडरी अलायंस है इसनू किसने इंट्रोड्यूस किया? तो इसनू अंग्रेज नवाब लॉर्ड वेलेस्ली ने, नवाब नहीं सॉरी अंग्रेज लॉर्ड, ठीक है, वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया सी, राइट। ओके, इस तो बाद फिर गाजीउद्दीन हैदर भी आंदा है ना, ओके। और ये सादित अली खान टू का ही सन है, बट इन्ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इन्हू ज़्यादा नहीं ध्यान च रखना, ओके। फिर गल करते हैं इस दे बारे विच इक्को एक चीज़ याद रख लो, किहड़ी जी? इनू लॉर्ड हेस्टिंग्स ने बादशाह का टाइटल दिता सी, ठीक है। हुण इस तो बाद डायरैक्ट असीं पढ़ांगे लास्ट नवाब दे बारे दे विच, ये किहड़ा हो जाएगा? वाजिद अली शाह। इस दे टाइम दे विच ही 1856 दे विच जाके अवध दे उपर अंग्रेज़ां दा कब्जा हो जाता है, समझ गए? ओके, इत्थे असीं एक नाम लै रहे हैं जेम्स ऑस्ट्रियम्स रिपोर्ट, राइट। हु इज जेम्स ऑस्ट्रियम? मैं तुहानूं की दस्सिया सीगा, अंग्रेज़ां ने अपना एक रेजिडेंस बिठाया सीगा लखनऊ दे विच, याद है इलाहाबाद दी ट्रीटी तो बाद, है ना। ते ओही वाला रेजिडेंस है। इन्हें ही की कीता सी, इसने ही जो वाजिद है ना, वाजिद अली शाह, इस दे उपर इल्ज़ाम लगाया सी, एलीगेशन लगाया सी मिसरूल दा, ओके। ते जेम्स ऑस्टियम ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई और अवध दे बारे दे विच बोलिया कि इस दे उपर अंग्रेज़ां दा हक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज अवध दा बेचारा एडमिनिस्ट्रेशन नूं सही तरह कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। और ऐसे बंदे दी ही रिपोर्ट दे उपर फिर अवध नूं अंग्रेज़ां ने अपने अंडर लिया सी, ठीक है। इत्थे लैक्चर ओवर नहीं हुंदा, 2 मिनट रुको। देखो हुण एज दा फिर रिजल्ट की हुंदा है? एज दा रिजल्ट होएगा 1857 दी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट, ओके। वैसे तां जिहड़ी इलाहाबाद दी ट्रीटी है असीं कीता, इस तो बाद अवध दे उपर इनडायरैक्ट वे दे नाल अंग्रेज़ां ने अपना कब्जा कर ही लिया सी, बट अवध ने एदा विद्रोह नहीं किया। सानू पता है अवध हमेशा ही इन्हां दा अच्छा फ्रेंड बन के रहा, राइट। फिर लॉर्ड वेलेस्ली आया, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम के उपर सबसिडरी अलायंस आया, राइट, एनू भी साइन किया गया। फिर भी अवध बेचारा कुछ नहीं बोलिया, बिल्कुल चुप रहा, है ना। बट धीरे धीरे करके जदों इत्थे लॉर्ड डलहौजी आया ना, उदों ही ओ वाला टाइम है जदों सारियां दा सारा सिनेरियो बदलन जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही टाइम दे विच जेम्स ऑस्ट्रियम ने माल एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट बनाई सी, राइट। किस दे अगेंस्ट बनाई सी? वाजिद अली शाह दे, है ना। और इन्हां ने फिर की कीता सीगा, अवध के उपर अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिता, राइट। एंदे करके ही हुण इत्थे दे जिहड़े सोल्जर्स है, जिहड़े इत्थे दी आम पब्लिक है, आम जनता है, नवाब है, इन्हां दे विच हुण फिर रोह पैदा होण लग गया, ठीक है। तो फिर 1857 दे विच अंग्रेज़ां ने जाके इनू बखूबी महसूस भी किया इस रोह नू, ठीक है। इस तरह से की देखिया कि स्टार्टिंग दे विच ओनली ट्रेड करने वास्ते आई सी ए कंपनी, है ना। और इन्ने धीरे धीरे करके अपने किंगडम दे विच इंडिया दे हर एक हिस्से नू मिलाना स्टार्ट कर दिता, है ना। ते अवध तो बाद ऑलमोस्ट 1857 दे रिवोल्ट दा बेस रेडी हो चुका है, ठीक है। पर बाद दे विच हुण फिर जिन्नियां भी देसी रियासतां आणगियां, ठीक है, इन्हां दे उपर हुण ये कब्जा नहीं करनगे। अंग्रेज़ हुण इत्थे नवी गेम लैके आउणगे। ये की कहणगे? ये इन्हां नूं ब्रिटिश च शामिल करनगे, बट इन्हां नूं ऑफर करनगे कि तुसी ब्रिटिश दे सुप्रीमेसी नूं एक्सैप्ट कर लो, यानी कि राज तुसी करदे रहो, बट किस तरह? बिल्कुल साडे पपेट बन के, जिस तरह असी कहांगे तुसी उस तरह चलोगे, ठीक है ना। ते इस तरह तुसी साडे पपेट बन के काम करदे रहो, ते असली दे विच असी सारा रेवेन्यू देखांगे, असी सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखांगे, ठीक है। ते ऐदां करके फिर इन्हां ने अवध दे उपर भी अपना कब्जा कर लिया, राइट। एंड उस तो बाद ट्रेडिंग दे नाल नाल अपने पोलिटिकल पावर्स नूं भी जिहड़ा हैगा सुप्रीमेसी नूं दिखाना इन्हां ने शुरू कर दिता है। ते हुण जदों असीं नैक्सट चैप्टर करांगे, ठीक है, इस दे विच असीं करांगे ब्रिटिश दी उन्हां पॉलिसीज़ दे बारे दे विच जिन्हां दा इंडिया दे उपर इंपैक्ट पिया, ठीक है, जिस दे विच असीं सारियां ही सबसिडरी अलायंस करना है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स करना है, एंड इन्हां दे जिहड़ियां किसानां दे टाइम दे विच जिहड़ियां इन्हां ने अलग अलग रेवेन्यू नूं कलैक्ट करन दे लई जिहड़े सिस्टम्स लैके आए, सारे दे सारे ही
ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਵਧ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਕੱਲ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਵੀਕਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਲੈਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਟਾਈਮ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਬਾਏ ਬਾਏ।